Welcome back again. Today is day 3 and we'll be solving this problem, race car. So this is a good problem related to dynamic programming. I'll explain, like you can also solve this via BFS, but I use dynamic programming for this. And it's a bit complicated, but I'll do like you have to play with bits and all, but I'll do my best to explain this to you. So the problem say like you can read the problem once, but I'll still explain. So you're given like a car and it's currently at position 0, like it's single coordinate axis, position 0 and speed +1 on an infinite number line, and the car actually runs on sequences. So if you say A, it will accelerate, and if you do like if you give the command as R, it will do a reverse operation. So when you get an instruction A, your car does the following: position speed जो भी होता है, which is currently +1, उससे position will increase and speed will be doubled. Every time it will be doubled, and when you get an instruction R, your car does the following: speed would reset, like look at this operation, speed -1 से कम नहीं होता है, it will be set to -1, and if your speed is already -1 and you give this an instruction R, the speed would turn out to be 1. So that's it, and your position stays the same. For example, if AR तुम्हारा command है, your car goes to position 0 1 3, because speed अगर तुमने A दिया तो 1 से 2 it will go, क्योंकि your initial speed was 1, then double हो जाएगा speed, so यहाँ पे 2 का displacement cover हुआ, then तुमने reset कर दिया कार को R operation देके, so speed got to -1. So these are the speeds and this is the coordinate that have changed. So if you see 3 and 3, that stays the same. ठीक है. So अगर तुम like if you spend some time with the problem, you'll realize that एक चीज़, I'll explain you that thing once. So these are the coordinates. So पहले स्पीड लिख देते हैं, अगर हम बस सीधा जा रहे हैं. सो 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है. एंड इनिशियली यू आर एट 1, सो इफ़ यू गेट दिस स्पीड का कमांड यू विल गेट टू 1. सिमिलरली 3 7 15 31 63 एंड 127, ठीक है. सो यहाँ मैंने डिस्टेंस लिखा है, ये डिस्टेंस है, और यहाँ मैंने स्पीड लिखा है, ठीक है. नाउ सपोज तुम्हारा स्पीड, अगर लाइक तुम्हारा टारगेट डेस्टिनेशन बोला है इस प्रॉब्लम के लिए, तुम्हारा टारगेट डेस्टिनेशन दिस सेड इज़ 100. सो 100 कम्स समवेयर ओवर हियर, राइट. यहाँ पर 100 आता है एंड दैट इज़ योर टारगेट डेस्टिनेशन. अभी अगर तुम्हारा टारगेट डेस्टिनेशन 63 या 127 में से कुछ होता तो तुम डायरेक्टली जंप कर करके ईजीली वहाँ पे पहुँच जाते. मेक सेंस, राइट, क्योंकि तुम्हारे 2 के पावर में यू आर इंक्रीजिंग योर स्पीड, सो यू कैन लाइक तुम इजीली 30 लाइक 63 127 या 255 तो तुम इजीली पहुँच पाते. बट इन दिस केस इट्स अ नंबर विच इज़ बिटवीन 2 पावर्स ऑफ n. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. इफ़ यू सी क्लोजली, लाइक जो ऑप्टिमल कंडीशंस है तुम्हारे पास, दैट इज़ बेसिकली फर्स्ट केस देखते, ठीक है. व्हाट इज़ योर केस 1 दैट यू कैन डू इज़ reach 127 and then cover the distance between 100 and 127. Like reach 127, reset your speed and everything, and then cover this distance. First, like ये case 1 है, this is a possible solution. Second possible solution, case 2 क्या होगा, you reach 63, ठीक है, you reach 63 and then you keep going back. सो व्हाट आई मीन टू से 63 से आके तुम 2 के पावर में पीछे जाओ, लाइक डू 2 subtract 2 raised to 1, then 2 raised to 1, then subtract -2 raised to 2. ऐसे कर करके पीछे जाओ एंड देन ट्राई टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन दिस, यहाँ से लेके 127 तक. सो व्हाट आई मीन टू से इज़ रीच 163, ठीक है, रीच 163 एंड देन उसके पीछे जा जाके कवर सच डिस्टेंसेस, माइनस थोड़ा लाइक गो 2 डिस्टेंस पीछे, देन गो 4 डिस्टेंस पीछे, देन गो 8 डिस्टेंस पीछे, एंड देन फ्रॉम दैट पोजीशन अगेन रीसेट एवरीथिंग एंड ट्राई टू रीच 100 अगेन. समझा, राइट. सी सेकेंड लाइक मतलब दो ही है, अगर हम इसे बेसिक इंग्लिश में बोले 2 ही स्टेप है. 100 के आगे जाओ जो उसका दूसरा बिट है, लाइक फोकस ओनली ऑन दीज 2 बिट्स 63 एंड 127.
यू हैव टू ऑप्शंस, रीच 127 एंड कम बैक, रीच 63 एंड तुम 63 के आगे मत जाओ, रीच 63, ट्राई गोइंग एक एक बिट बैक, यू लाइक यूज़ योर आर वाला ऑपरेशन एंड देन ट्राई रीचिंग 100. सो when you reset, so abhi isme like why I use dp is dpi will always denote, dpi will always denote if I start from 0 and my speed is 1, how much time it will take for me to cover I distance. So let's just यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही है, how much time it will take for me if my current position is 0 and my speed is 1, how much time it will take for me to cover I kilometers, that is your dp of I. सो यहाँ पे जब मुझे dp of 100 सर्च करना था, dp of 100 सर्च करना था, सो व्हाट आई कैलकुलेटेड कि मूव्स रिक्वायर्ड टू रीच 127 विच इज़ 2 raised to something जो यू कैन कैलकुलेट, प्लस dp ऑफ ये जो बीच का डिस्टेंस मेरा बच गया, ठीक है, दैट इज़ 27, सॉरी बीच का डिस्टेंस तुम्हारा बच गया, दैट इज़ 27. सेकेंड ऑप्शन दैट यू हैव इज़ मूव्स रिक्वायर्ड टू रीच 63, देन ट्राई गोइंग एक एक स्टेप बैक एंड देन dp ऑफ, यहाँ पे एक फॉर लूप चलेगा, लाइक यू विल पुट अ फॉर लूप की फॉर लूप किस बात का, dp टू कवर ये वाला डिस्टेंस 100 - 63 वाला डिस्टेंस, क्योंकि वो डिस्टेंस अभी बचा है ना, प्लस तुम कितना पीछे गए, सपोज तुम 31 में चले गए, लाइक 63 - 2 ले लो, तुम 61 में चले गए, प्लस दैट दो डिस्टेंस जो तुमने काटा, कॉमा एक और फॉर लूप चलेगा अगेन 100 - 63 + 4. सो 63 से तुम एक एक स्टेप पीछे आ रहे हो, लाइक सपोज तुम 63 पे आए, ठीक है, देन तुमने बोला आई विल गो 8 steps बैक, सो 8 step बैक इज़ 55. सो तुम 55 पे हो, तो अभी तुम्हें 55 to 100 रीच करने का, विच इज़ 45, यू नीड dp ऑफ 45. सो समझा राइट क्या हो रहा है, लाइक तुम 63 पे पहुँचे, तुम सब कुछ आंसर में, लाइक आई शो यू द कोड वंस बेटर समझेगा, यू विल रीच 63, यू विल ऐड योर, लाइक तुम आंसर में ऐड करोगे कि 63 तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगे, यू विल टेक, लाइक यू विल ट्राई टू टेक 2 steps बैक, 4 steps बैक, 8 steps बैक, यू विल ऐड दैट ऑल्सो, सपोज 4 steps बैक लिया तो +4, क्योंकि मैंने 4 steps बैक लिया. सो अब तक आंसर में क्या क्या ऐड हुआ, मूव्स रिक्वायर्ड टू रीच 63, 4 steps बैक दैट आई हैव टेकन, एंड नाउ हाउ मच डिस्टेंस डू आई नीड टू कवर. तो 63 पे थे, -4 गए, एक्चुअल पहुंचना था 100, तो 63 - 4 कितना होता है 59, 59 से लेके तुम्हें 100 तक पहुंचना है, विच इज़ हाउ मच डिस्टेंस 41, प्लस dp ऑफ 41, प्लस dp ऑफ 41. दिस इज़ योर एक ऑप्शन. सिमिलरली यू कीप डूइंग फॉर +8, क्योंकि तुम 8 steps पीछे गए, प्लस वापस तुम आंसर में ऐड करोगे. सो ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, केस टू लाइक एक बार वीडियो वापस देख लें तो मैं समझेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो दैट यू, मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम 100 से एक स्टेप पीछे पहुँचो, आगे मत जाओ, फिर 63 से एक एक 2 का पावर पीछे आते रहो, इसको आंसर में ऐड करो जो तुम पीछे आ रहे हो, क्योंकि पीछे आने का भी ऑपरेशन लग रहा है, राइट, इतना लाइक इतना ऐड टू योर आंसर, देन ट्राई टू कवर, लाइक यहाँ पे तुम वापस एक अपना जो आर है वो हिट करोगे और रीसेट करोगे. नाउ यू हैव टू रन यहाँ से लेकर 100 तक का तुम्हें डिस्टेंस कवर करना है, एंड दैट इज़ इन अ DPI, सो यू रिकर्सिवली कॉल अनदर ऑपरेशन. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ लेना. सो वही है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे वो केस मैंने टेस्ट किया है, अगर तुम जो तुम्हारा टारगेट डिस्टेंस है इट इज़ ऑलरेडी 2 के पावर वाला केस आ रहा है, जैसे तुम्हें अगर यहाँ पे कोई बोल दे कि आई वांट टू रीच 31, सो यू कैन ईजिली रीच दैट वाया जंप्स, राइट. सो वो मैंने सीधा यहाँ पे रिटर्न कर दिया. अदरवाइज दिस इज़ योर फर्स्ट ऑपरेशन जहाँ तुम पहुँच रहे हो, यू पास द टारगेट, तुम टारगेट से आगे चले जाओगे, यू पास द टारगेट, तुम टारगेट से आगे चले जाओगे, दैट इज़ 1:, अब अभी आई विल एक्सप्लेन कोड वाला पार्ट भी समझाना इज़ थोड़ा सा अलग ही, ठीक है. सो अभी 1:, टारगेट पावर माइनस टारगेट, अभी इफ़ यू सी टारगेट पावर में +1 हुआ था, सो दैट मीन्स यू रीच्ड 128, तो मैं एक्चुअल में 100 पहुँचना था बट यू रीच 128. सो रिकर्स ऑफ 128 माइनस योर टारगेट माइनस माई, नाइस मेरा ये घूम हो जाता है, हाँ, माइनस योर 100, दैट गिव्स यू 28. बट मैंने वापस यहाँ -1 क्यों लिखा है, दैट इज़ बिकॉज DP ऑफ I मैंने अभी भी क्या बताया था, योर एक्चुअल पोजीशन इज़ 0, सो by generality you have to cover 28 steps only, right? So that's why I'm calculating DP of 27, because DP assumes that you are starting from position 0.
सो दैट्स वाई वहाँ पे -1 आ गया. एंड अब तक कितने ऑपरेशंस यूज़ हुए, यू ट्राई टू रीच टिल 128, राइट. सो उसमें इतना पावर लगा, टारगेट पावर, दैट इज़ log 2 बेसिकली. टारगेट पावर इज़ बेसिकली टारगेट का पावर, लाइक log 2 basically. So if it's 128, then it's 2 raised to 7. So 7 is your target power that time. एंड ये +1 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक आर ऑपरेशन डाल दिया, क्योंकि अभी मुझे पीछे जाना है. सो दैट्स वाई दैट आर ऑपरेशन अकाउंटेड फॉर दिस पर्टिकुलर वन. नाउ दिस इज़ दैट सेकेंड केस, यू डोंट पास द टारगेट, वो जो मैं अभी पूरा बता रहा था. दैट इज़ यू स्टे एट दिस थिंग 63. ठीक है. सो इफ़ यू स्टे एट दैट 63, डीपी ऑफ टारगेट क्या बनेगा, पहले तो मिनिमम डाल दिया, रिकर्स ऑफ टारगेट माइनस, अभी ध्यान से देखना, ठीक है. टारगेट वॉज 100, I reached till 63, right. So 100 minus 1 raised to target power -1, which is 63, sorry 64 to be precise, but क्योंकि हम एक्चुअल में 63 नहीं, तो तुम 64 ले लो, वो पहुँचे हो. यू रीच 64 प्लस तुम थोड़ा पीछे भी जा रहे हो, राइट. यू आर ऑल्सो गोइंग थोड़ा सा पीछे. तो वही जो मैंने बताया, दैट यू विल गो, इफ़ यू सी मैं 1:i पे कर रहा हूँ. सो यू आर थोड़ा लाइक गोइंग 2:1, देन यू आर गोइंग 2:2 पीछे. तो दैट इज़ ऑल्सो एडिंग टू योर आंसर. लाइक इफ़ यू सी ये पूरा एक, दिस इज़ 1:i. सो ओके, ये मैं कैसे बताऊँ यार. सो 100 - 64 के बीच का डिस्टेंस तुम्हें कवर करना ही है 36, और तुम्हें कितना डिस्टेंस कवर करना है, तुम 64 से जितना पीछे गए हो, ये बेसिकली प्लस होगा, तो तुम 64 से ले लो, अगर तुम 4 डिस्टेंस पीछे गए हो, यू वेंट आर, तो नाउ व्हाट इज़ योर टारगेट. सपोज यू वेंट 4 डिस्टेंस पीछे, तो नाउ योर टारगेट इज 60 से तुमको 100 पहुंचना है, राइट. सो दिस इज़ 40, और बीच में 64 था, तो ये हमने आंसर में ऑलरेडी ऐड कर दिया, ये फिर हमने बाद में आंसर में ऐड किया. सो प्लस दिस, ये जो यहाँ पे इतना पार्ट वॉज ये वाला 64 - 100, ये वाला पार्ट था वो, ये, एंड फिर उसके बाद ये 64 के बीच वाला पार्ट ये था. ठीक है, समझा, राइट. एंड देन अभी तक तुमने ये रिकर्सिव कॉल तो कर दिया, लाइक अभी तुम्हारे ऑपरेशंस लेकिन कितने गए, वही सेम, टारगेट पावर +i, क्योंकि तुमने ये पीछे इतने मूव्स चले, एंड देन +1 सिमिलरली फॉर आर वाला केस जो हमने अभी यूज़ किया. हाँ, समझा, राइट ये. एंड देन यू सिंपली रिटर्न डीपी टारगेट, एंड ये हमने मेमोराइजेशन वही सेम चीज़ मेमसेट, एंड यहाँ पे मेमोराइज कर दिया इसको. सो दैट्स इट. ये थोड़ा लाइक तुम्हें समझना पड़ेगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे. टारगेट -1 रेज़ टू टारगेट पावर -1 क्या है एग्जैक्टली. सो मैं भी वापस तुम्हें कैसे ही बताऊँ, लाइक अगर तुम खुद ही सोच लेना एक बार, लाइक इट्स 100 - 1 रेज़ टू टारगेट पावर -1. व्हाट वाज माय टारगेट पावर इस केस में, 128 के सेट में इट वाज 7. सो 2:6, तो 100 - 2:6, विच इज़ बेसिकली 100 - 64. सो 36 का जो एक डिस्टेंस था तुम्हारे पास, दैट वी एक्चुअली वांटेड टू कवर. और वो कैसे आया वो 36, क्योंकि तुम देखो तो मुझे 63 to 100 इज़ एक्चुअली 36 का जो इज़ लाइक दैट इज़ एक्चुअल में 37 है, बट एज आई सेड हम डीपी ऑफ 0 से हम सर्च करते हैं. सो दैट इज़, इसलिए हमने 36 लिया, एक्चुअल में 37 है, बट वी हैव केप्ट इट एज 36. एंड देन ये 1:i, क्योंकि हम उतने मूव्स पीछे गए हैं, एंड देन वो चीज़ें हमने आंसर में डायरेक्टली ऐड कर दी है. हाँ, ठीक है, दैट्स इट. कुछ इसमें डाउट हो तो पूछ लेना, आई विल ट्राई टू एलैबोरेट दिस मोर इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट, बट हाँ, दैट्स इट. बाय बाय.